What are the salient feature of inclusive growth? Has India been experiencing such growth process? Analyze and suggest measure for inclusive growth. Economic growth does not mean anything unless it is inclusive growth. Economic growth does not mean anything unless it is inclusive growth. जॉन ग्रीन ने डेफिनेशन दी है, OECD ने डेफिनेशन दी है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी and create opportunity for all. Inclusive growth entails comprehensive growth, shared growth and pro-poor growth. Comprehensive growth होगी, shared growth होगी and pro-poor growth होगी. ठीक है, 3 पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सोशल ग्रोथ करो एंड इन्वायरमेंटल ग्रोथ. ठीक है, कौन कौन सी? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करेगी इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट opportunity, while social inclusion emphasize equal access to education, healthcare and social services. Environment sustainability बताएगी, ensure करेगी that development is pursued in a manner that protect and preserves the environment for future. मतलब 3 पिलर हैं. आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो, फिर आप सोशल डेवलपमेंट भी करो, इसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी लाओ. ठीक है, अब आते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Focus on poverty reduction. Inclusive growth aim to significantly reduce poverty and bridge the income gap between different sections of society. This means ensuring everyone has the opportunity to improve their life standards. ठीक है, improved income distribution. It provide a more equitable distribution of income and wealth. This does not necessarily mean everyone earn the same, but rather that everyone has a fair sort of economic prosperity. मतलब पॉवर्टी आप रिड्यूस करो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो इसका ये मतलब इम्प्रूव्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको कुछ फेयरली मिल जाए. ठीक है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. इंक्लूसिव ग्रोथ प्रायोरिटाइज करती है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, skill development and other resources. This empower individual from all background to participate meaningfully in economy. Elements of inclusive growth. सबसे पहला है आपको पॉवर्टी रिडक्शन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना है. इंडस्ट्री को डेवलप करो, एग्रीकल्चर को डेवलप करो. रिडक्शन करना है हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ में. सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हमें करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो ठीक है, पॉवर्टी कर दी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करा है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. अब इधर देखो, social progress. It goes beyond just economic metrics and emphasizes social well-being. This include improvement in area like health, education and gender equality. ठीक है, environment sustainability. Inclusive growth recognize the importance of environment sustainability. It aim to achieve economic prosperity without compromising the environment for future generation. ठीक है, तो environment sustainability होगी, मतलब social progress, फिर environment sustainability. Shared prosperity. The benefit of economic growth are shared wisely across different region, social group and economic sector. Shared prosperity. The benefit of economic growth are shared widely across different region, social group and economic sector. This reduce regional disparity and promote overall societal development. Shared prosperity. ठीक है, एम्पावरमेंट. इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट handout but also about empowering individual and communities to take charge of their own development. This can involve promoting financial inclusion, microfinance initiative, fostering an environment conducive to small businesses. ठीक है, empowerment करना है. Participation. It encourages the participation of all stakeholders including government, business, civil society organization and general public in developing and implementing strategy for inclusive growth. Has India been experiencing such growth? ठीक है,
India's economic growth story has been impressive in recent decades. However, achieving truly inclusive growth remains a work in progress. Here is a here is a breakdown of solution. देखो साइन कैसे है, देखो ऑलरेडी पॉवर्टी है. India has witnessed significant poverty reduction. The World Bank reports that the number of Indian living below poverty line fall from 44% in 2005 to 15.7% in 2019. ठीक है. Improved health structure. देखो life expectancy at birth has rising steadily, reaching 69.7 years in 2020. World Bank कह रहा है infant mortality rate has been declined, showcasing improvement in health access. ठीक है. अब हम आते हैं एक्सपेंडिंग सोशल सेफ्टी नेट. ठीक है. पॉवर्टी आप रिड्यूस कर रहे हैं, हेल्थ. अब हम सोशल सेफ्टी की बात कर रहे हैं. देखो फूड सिक्योरिटी स्कीम initiative like public distribution system provides subsidized food grain to millions of low income households, ensuring basic food security. Education initiatives program like Sarv Shiksha Abhiyan have led to an increase in primary and secondary school enrollment rate, particularly among girls. This empowers future generation with education and potentially better job prospect. ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट 53 करोड़ बैंक अकाउंट है. ठीक है. और डिजिटल ट्रांजेक्शन, द rise of digital wallet and online payment platform like UPI has facilitated easier access to financial services and foster cashless transaction, promoting financial inclusion in rural area. Empowerment and participation, women's entrepreneurship, government schemes like micro unit development and refinance agency loan and stand up India provide financial support to women entrepreneurs, encouraging their participation in formal economy. Self-help groups empower women in rural area by facilitating microcredit, promoting financial literacy and fostering income generation activities. These groups create a network of support and contribute to economic well-being of rural economy. अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़. मिनिमम वेज, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट मिनिमम वेज पॉलिसी इन वेरियस सेक्टर एमिंग टू इंश्योर अ बेसिक लेवल ऑफ इनकम फॉर वर्कर्स. मिनिमम वेज दे रहे हैं. ठीक है. रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन पॉलिसी इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब एम टू provide opportunity for historically disadvantaged communities, promoting social inclusion. मतलब मिनिमम वेजेस दे रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मिनिमम वेजेस एंड रिजर्वेशन दे रहे हैं. चैलेंजेस एंड तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि क्या होता है, मतलब सेलिएंट फीचर क्या है. ऐसी जो पॉवर्टी को रिड्यूस करें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस करें, उसके अलावा सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो, एम्पावरमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो. ठीक है. इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन, ये सब जब होगा तब वो जो ग्रोथ होगी वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. अब हम देख रहे हैं कि क्या इंडिया कुछ कर रहा है, तो हम बताएंगे कि हाँ हमने पॉवर्टी रिड्यूस करी है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम चला रहे हैं जैसे फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन के लिए हम फिनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, जनधन अकाउंट एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन हम एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप. हम गवर्नमेंट ऑलरेडी मिनिमम वेजेस और रिजर्वेशन की कुछ अफर्मेटिव एक्शन ले रही है. ठीक है. अब आते हैं चैलेंजेस क्या हैं. पहला है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट. देखो द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेक्टर ऑफ सोसाइटी. इनकम इक्वलिटी रिमेन्स हाई विद वेल्दियस सेगमेंट कैप्चरिंग ए डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गेन. ठीक है. मतलब ये वही समझ लो, टॉप 1% लोग हैं, उनके पास 40% वेल्थ है. India's employment is low due to illiteracy, and with over 80% of labor force in informal sector without social protection, there is a dearth of job, especially quality jobs. PL periodic labor force survey
इंडिया एक्सपीरियंसिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 7%, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अराउंड 44% जो पॉपुलेशन है इंडियन वर्क इन एग्रीकल्चर, बट इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू 16.5% टू GDP, लीडिंग टू ए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। persistent regional disparity, there are significant disparity in development between state and region. While some states had witnessed rapid growth, other lags behind, creating a challenge for balanced national progress. Rural urban divide है, the gap between rural and urban area persists. Rural population often have limited access to quality education, healthcare and infrastructure, hindrance their economic opportunity. Informal sector पर reliance है, a large portion of workforce remain concentrated in informal sector and characterized by low wage and limited social security. इसका मतलब क्या है? देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट है। इंडियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है कम है, ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, रीजनल डिस्पैरिटी परसिस्ट है, रूरल अर्बन डिवाइड है, इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, ठीक है। अब आते हैं मेजर्स क्या ले रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू इम्प्रूव्ड सीड irrigation facility and modern farming techniques. For example, Bihar Agriculture Roadmap aim to increase agriculture productivity and income of farmer through various initiatives such as soil health cut, crop diversification and market linkages. अब आते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कनेक्टिविटी टू इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट बेसिस सर्विसेज, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल कनेक्टिविटी के लिए। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ स्पेशली इन रूरल एरिया, जैसे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ एंड enhance their employability. Financial inclusion measures देखो promoting financial literacy and expanding access to banking and financial services in rural area. For example है जीविका प्रोग्राम इन बिहार प्रमोट कर रहा है financial inclusion through formation of self help groups and access to microfinance. अब देखते हैं मेजर्स, देखते हैं हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोटिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस, जैसे मुख्यमंत्री हर घर नल का जल स्कीम एम टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल बिहार प्रमोटिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या क्या किया हमने। एग्रीकल्चर को डेवलप कर लो, रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना है, स्किल और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, हेल्थ सैनिटेशन पे ध्यान देना है। फिर आते हैं एजुकेशन पे, एनहांसिंग एक्सेस टू क्वालिटी education and improving educational infrastructure in rural areas. For example, Bihar Student Credit Card Scheme provide interest-free loan to student for pursuing high education, thereby improving access to education, ठीक है। Social protection देखते हैं मेजर्स, देखो strengthening social protection program for vulnerable groups such as widow, the elderly and person with disability. एग्जाम्पल देखो बिहार स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू वल्नरेबल पॉपुलेशन थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन, प्रमोटिंग MSME, encouraging the growth of MSME through policy support, access to finance and market linkages. For example, Bihar Industrial Investment Promotion Policy aim to promote MSME and attract investment. Women empowerment, जीविका या मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ठीक है। प्रमोटिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन फॉर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस एंड इम्प्रूविंग देयर लाइवलीहुड। environment sustainability measures promoting sustainable agriculture practices and environment conservation. देखो बिहार क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान फोकसेस ऑन एनवायरनमेंट रिजिलियंट एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब सब लिख दो आप, वुमेन लिख दो, एनवायरनमेंट लिख दो, MSME, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, देखो इंडिया हैज़ मेड स्ट्राइड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ बट सिग्निफिकेंट वर्क रिमेन्स. Addressing issues like income inequality, regional disparity, and skill development are crucial for ensuring everyone benefit
from economic process. A multi-pronged approach involving government initiatives, private sector investment, and social sector participation is necessary to achieve a more equitable and sustainable development path for India. देखो, despite the high level of financial inclusion in India, why does BR still face challenges in this regard, and what solution can be implemented to address them? देखो, financial inclusion is not just about giving person access to financial services, it is about giving them tool to build a better life. मतलब ऐसा नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का केवल ये मतलब नहीं है कि आपने उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दे दी, बट गिविंग देम द टूल टू बिल्ड देयर लाइफ बेटर. मोहम्मद यूनिस. वर्ल्ड बैंक डिफाइन कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एज एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेट मीट देयर नीड, जैसे ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरिंग डिलीवर इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे. मतलब अफोर्डेबल, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, आप अफोर्डेबल सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, जो कि उन अफोर्डेबल सर्विसेज टू मीट देयर नीड, और इनको आप डिलीवर कर रहे हो रिस्पॉन्सिबली एंड sustainable way में. This definition highlights not just access but also the effectiveness, affordability and responsible delivery of financial services to ensure long term benefit for individual and community. ठीक है, अब आते हैं इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. सबसे पहला है क्या बैंक अकाउंट कितने हैं, ठीक है, ओके. तो हम देख रहे हैं कि 78% जो इंडियन अडल्ट्स हैं, ये हमारी ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2021 के आधार पे है. 78% जो हमारा इंडियन अडल्ट्स हैं उनके पास बैंक अकाउंट है. एक्सेस केवल 27% लोगों को मिल रहा है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कैपिटा वो बढ़ गया है, ठीक है. इनफैक्ट अब तो और ही ज़्यादा बढ़ गया है. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने बोला है 24 में, और अभी जैसे 9.3 बिलियन लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 13 बिलियन के अप्रॉक्स हो गया होगा, ठीक है. एक्वार है, ठीक है. 5 पिलर हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की. एक्सेस, इंश्योरिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस एज एक्वार, AQUAR, ठीक है. एक्सेस, इंश्योरिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज देगा, ठीक है. और फिर क्यू है क्वालिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज मस्ट बी रिलायबल, कन्वीनियंट एंड टेलर्ड टू यूज नीड एंड इंश्योरिंग देयर इफेक्टिवनेस. यूज बियॉन्ड एक्सेस सर्विस मस्ट बी एक्टिवली यूज्ड. द पिलर प्रमोट रेगुलर यूज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू मीट पर्सनल एंड बिजनेस नीड, ठीक है. अफोर्डेबल, the cost of financial services could be reasonable, making them affordable, making them accessible to all, especially marginal community. Resilience, financial systems should be robust enough to withstand economic shock and crisis while ensuring uninterrupted services, ठीक है. मतलब कि एक्सेस होगी, क्वालिटी होगी, uses affordability and reliance, ठीक है. These pillar provide a comprehensive framework to promote financial inclusion and enhance economic participation, ठीक है. अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इन बिहार. करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस. देखो, डिस्पाइट इंडिया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिहार कंटिन्यू टू फेस सब्सटेंशियल बैरियर्स. As one of the most populous and economically weaker state, Bihar ranked low in several financial inclusion parameters. सबसे पहला है लिमिटेड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि बिहार हैज़ ओनली, मतलब बिहार में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 10.5 बैंक हैं, और कितना 10.5 बैंक हैं और 6.1 ATM है. जबकि ये RBI ने कहा है कि इंडिया में 14, इधर 10 हैं, उधर 14.7 है, यहाँ 6 हैं, वहाँ 22 हैं, ठीक है. लो डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी. ओनली 43% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन बिहार हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट कंपेयर टू नेशनल एवरेज 65%. लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी 24% है, जबकि नेशनल लेवल पे 35% है. हाई पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन. 1/3 जो पॉपुलेशन है बिहार की वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी.
बैंकिंग करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, ओनली 12% ऑफ विलेज इन बिहार हैव बैंकिंग करस्पॉन्डिंग, जबकि नेशनल एवरेज 19% का है। कल्चरल वेरियर, इनफॉर्मल मनी लेंडर डोमिनेट्स रूरल एरिया विद 40% ऑफ रूरल क्रेडिट इट्स स्टिल कमिंग फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2022 में बताया। लार्ज इनफॉर्मल इकॉनमी, बिहार इनफॉर्मल सेक्टर accounts for over 85% of total employment, leading to high reliance on cash transaction, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। ठीक है, तो देखो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर पेनिट्रेशन नहीं है, डिजिटल पेनिट्रेशन कम है, लिटरेसी भी कम है, और पॉवर्टी वगैरह ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, कल्चरल वेरियर हैं, और इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला है इन्हांस करना है हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कवरिंग 6 लाख रूरल हाउस होल्ड इन 2023। लेवरेज करना है टेक्नोलॉजी, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपिंग यूजिंग मोबाइल ऐप हैव रीच्ड 3.2 मिलियन पीपल इन बिहार। ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट करना है, जैसे कि एनजीओ हो गया, सेवा हो गया, प्रथम हैव इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप 30 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर इन बिहार मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। अब आते हैं इंटीग्रेशन इनटू स्कूल कैरिकुलम। बिहार बोर्ड इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल इन 9 और 10 के सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हांसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा है इन एक्सपेंडिंग एक्सेस टू डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो हम कह रहे थे ना कि बैंक वगैरह कम है, बैंक और एटीएम्स नहीं है, 10 और 6.1 है। ठीक है, जबकि नेशनल 14 और 21 का है। तो उसको देखें। स्ट्रेंथनिंग रूरल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर बैंक प्लान टू ओपन 200 न्यू रूरल ब्रांचेज इन बिहार बाई 2025। ठीक है, प्रमोट करना है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। यूपी यूजेस, देखो यूपीआई यूजेस बिहार ग्रू बाई 155% फ्रॉम 2001 से 2030। इनकरेज करना है बिजनेस करस्पॉन्डिंग। देखो अभी क्या है, ये 12% से हम 20% लेके जाएंगे 2025 तक। ठीक है, ओके। फिर करना है हमें लेवरेज करना है गवर्नमेंट स्कीम फॉर इंक्लूजन, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना। बिहार हैज़ ओपन 5.6 करोड़ बैंक अकाउंट्स सिंस 2014। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, 3.8 करोड़ बेनिफिशियरी बिहार से हैं, 5.6 करोड़ अकाउंट्स और 3.8 करोड़ बेनिफिशरीज। ठीक है, अटल पेंशन योजना, बिहार हैज़ 12 लाख सब्सक्राइबर बट पार्टिसिपेशन रिमेन लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, 12 लाख है। किसान क्रेडिट कार्ड, बिहार हैज़ 1.3 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड कवरिंग 54% एलिजिबल फार्मर्स। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए तो हमें बताने कितने बैंक अकाउंट है बिहार में, 5.6, और इनको है मतलब इनकी ये स्कीम्स में 3.8 करोड़, 5.6 करोड़, 3.8 करोड़ और 1.3 करोड़। 5.6 करोड़ अकाउंट्स हैं, 3.8 करोड़ ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में है। किसान क्रेडिट कार्ड में 1.3 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, कवरिंग 54% एलिजिबल फार्मर्स। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। माइक्रो फाइनेंस ग्रोथ, बिहार माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोफाइल ग्रू 28% इन 2023 बेनिफिटिंग ओवर 15 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, 28% ग्रो हुई है। वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 लाख एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि मोबिलाइज कर रहे हैं 7,500 करोड़ का माइक्रो क्रेडिट। कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्सपेंशन, द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू एक्सपेंड कोऑपरेटिव बैंक इन 30 अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, बिहार स्टेट कॉपरेशन बैंक 2023 मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, रेगुलर असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड टू एवेल्यूएट, जैसे इंक्रीज द बैंक अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम मतलब 5 मेजर्स हैं, 5.6 करोड़ हैं उनको 7 करोड़ तक करना है 2026 तक। ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजेक्शन,
एम कर रहे हैं फॉर 40% एनुअल ग्रोथ इन रूरल एरियाज। इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम मेजर करना है, पीरियोडिक रिव्यू करेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग पेनिट्रेशन, 18 ब्रांच पर 1 लाख पॉपुलेशन, और अभी कितनी है, 10 के अप्रोक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बिहार होल्ड इमेंस पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस इन दिस एरिया, एड्रेसिंग क्रिटिकल challenges such as limited banking infrastructure, low financial literacy and socio-economic barriers can help build a more inclusive financial ecosystem. Though sustained reform and innovative solution, Bihar can bridge the financial inclusion gap and unlock new opportunity, fostering overall socio-economic development, ठीक है। अब आते हैं, what are the main causes of disparity in economic and social development prevalent in Bihar? Economic and social development, critically evaluate the measure taken by government to reduce these inequality. Development is about transforming the life of people, not just transforming the economy. जोसेफ ने बोला है, ठीक है, जोसेफ स्टिलिज। बिहार, the land of ancient empire and fertile plain, present a paradox of immense potential marred by persistent disparity in economic and social development. While the state boasts a rich cultural heritage and abundant natural resources, a significant portion of its population continue to grapple with poverty, literacy and limited access to basic amenities, ठीक है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी इन बिहार, सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर। बिहार हिस्ट्री ऑफ अंडर डेवलपमेंट स्टेम फ्रॉम colonial exploitation, limited industrialization and predominantly agrarian economy, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है, स्टेट फेस अ significant deficit in infrastructure including road, electricity and healthcare facilities, hindering economic growth and contributing to social inequalities. Educational challenge, traditionally low education rate and inadequate education infrastructure have resulted in lack of skilled manpower, limiting economic growth and perpetuating social disparities. Agriculture dependence. Bihar economy heavily relies on agriculture, characterized by low productivity and vulnerability and to natural disaster, contributing to economic disparity. गवर्नेंस इशू है, challenges such as corruption, bureaucratic inefficiency and political instability have hindered effective implementation of development programs, exacerbating disparities. फिर है रीजनल डिस्पैरिटी, सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट विद इन बिहार विद सर्टेन रीजन लैगिंग बिहाइंड इन डेवलपमेंट इंडिकेटर कंपेयर टू अदर। फिर है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बिहार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ टू बी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, हिंडरिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। हिस्टोरी ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ रिजल्टेड इन सोशल इनइक्वालिटी एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिहार लैग्ड in industrial development compared to other state, limiting job opportunities and economic growth, particularly in rural area. Migration, high level of out migration in search of better opportunity have resulted in loss of skilled manpower and drain on in state resources, ठीक है। natural calamities आती हैं, prone to natural calamities such as flood and drought. Bihar economy is significantly impacted, further exacerbating existing disparities. Healthcare challenges and lack of healthcare infrastructure and resources lead to poor health outcomes, contributing to economic disparity and hindering overall development. Gender disparity, significant gender disparity exists, including low literacy rate and limited access to healthcare and employment opportunity for women. environment degradation हो रहा है, ठीक है। अनरेगुलेटेड
Industrial activity and agriculture practices have led to environment degradation impacting long-term economic and social development. अब आते हैं गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है. एजुकेशन में मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री मेघावृत्ति योजना. एग्रीकल्चर में मुख्यमंत्री किसान आय योजना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए. स्किल डेवलपमेंट की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना. हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोर्स प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल एक्सेस टू वीकर सेक्शन. गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री जनता दरबार अलाउ सिटीजन टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ऑफिशियल टू एड्रेस ग्रीवियंसेस एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी. अर्बन डेवलपमेंट में मुख्यमंत्री शहरी विकास सड़क योजना, शहरी सड़क योजना या फिर स्मार्ट सिटी वगैरह चला रहे हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट लाइक मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 1000 रुपये का प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ, और वो क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एम टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल पॉपुलेशन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. एवोल्यूशन ऑफ मेजर्स, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाइल सिग्निफिकेंट स्ट्राइड हैज़ बीन मेड, further investment is needed particularly in rural area to ensure equitable development. Education reform चाहिए. Improvement in literacy rate and education enrollment are evident. However, effort must continue to enhance educational quality and reduce dropout rate among marginalized community. Agriculture reform, increase productivity and income level have been achieved, yet challenges like लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट परसिस्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव एनहांस्ड यूथ एम्प्लॉयबिलिटी बट ग्रेटर अलाइनमेंट बिटवीन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट इज नीडेड. हेल्थ केयर इनिशिएटिव एक्सेस टू सर्विसेज हैव इम्प्रूव्ड, हाउएवर further investment in infrastructure and human resources is needed to meet growing healthcare demands. Good governance, citizen government engagement to improved, but more effort are required to enhance transparency, accountability and efficiency. Way forward, enhance investment in infrastructure. Prioritize करना है आपको investment in rural infrastructure to improve connectivity and access to services. Promotion of digital literacy. एक्सपेंड करना है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन टू एम्पावर मोर इंडिविजुअल विद डिजिटल स्किल्स. स्ट्रेंथन करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन. प्रमोट अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस एंड डिजिटल बैंकिंग स्पेशली इन रूरल एरियाज. बूस्ट करना है हमें स्किल डेवलपमेंट, ठीक है. एक्सपेंड करना है सोशल सिक्योरिटी किसके तरफ, वुमेन, एल्डरली, मार्जिनलाइज कम्युनिटी. स्ट्रेंथन करना है हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इनकरेज करना है क्लाइमेट रिजिलियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम. इम्प्रूव करना है इम्प्रूविंग गवर्नेंस. स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. The government of Bihar has undertaken various measures to reduce disparity in income and social development. While these measures have yielded positive results, there is still much to be done to achieve equitable development across state. Continued focus on infrastructure development, education, agriculture and skill development, healthcare and good governance will be crucial in narrowing the gap and fostering inclusive growth in Bihar.